Okay, I'll take a few of the important MCQs from the section ABC and then continue with the further part. Okay. सेक्शन ए में जो बेसिक डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए थे इन द थर्मोडायनामिक्स, उसके रिलेटेड प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस व्हिच आर independent on the amount of matter present in the system. ठीक है. So now free energy बोलते जाओ, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव. Extensive. Any form of energy is an extensive property because it would be dependent on the matter. Critical density. Intensive. Intensive. Viscosity. Intensive. लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Intensive. Intensive. Specific या molar are always intensive. Remember that. अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी होता, that would have been an extensive property. Kinetic energy. Extensive. Energy है तो extensive. Specific gravity is another name of density only, और specific word है तो intensive है. Dielectric constant of the solvent. Intensive. Intensive. वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर के लिए कंसीडर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. पीएच. Intensive. Intensive. Why? Because pH is given as negative log to the base 10 the concentration of the H plus ion. ये हम ionic equilibrium में देखेंगे. So basically we know that pH is related with concentration and concentration in turn is an intensive property. तो pH भी intensive property होगा. ठीक है. So out of the 9 properties, 2 of them are extensive. So the answer is 7. ये numerical value में भी आ सकता है. Similar type का question. Next, about thermodynamic functions and the processes. This is an important question which has maximum internal energy at 290 Kelvin. Neon, nitrogen, ozone या equal? Ozone. Why? Triatomic. Correct. Now internal energy जो है that is a function of temperature. तो फिक्स टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस का जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा. बट इफ द सब्सटेंसेस आर डिफरेंट देन द इंटरनल एनर्जी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिसिटी. ठीक है. तो जिसका ज्यादा एटॉमिसिटी होगा उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा. नियॉन इज अ मोनोएटॉमिक गैस, नाइट्रोजन डाई एंड ओजोन ट्राई. सो द आंसर इज ऑप्शन 3. ठीक है. सो इंटरनल एनर्जी एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. If moles of a gas is put through a series of changes as shown graphically in a cyclic process, A to B, B to C and C to A respectively. So now these processes we have to identify. A to B will be an Isochoric. because it's at a constant volume, isochoric. B to C, isobaric, because B to C may you can see the volume is directly proportional to temperature, and for an ideal gas this happens at a constant pressure as per Charles law. So that's how we can understand it will be an isobaric process, है ना. Volume is proportional to temperature, and C to A at a constant temperature will be isothermal. So it's isochoric, isobaric, isothermal. ठीक है. Next, in a laboratory, liquid in a thermally insulated container is stirred for 1 hour by a mechanical linkage to surrounding. For this process, what is W and Q relation?
There is a liquid placed in a thermally insulated container. What do you understand by this? Thermally insulated container, matlab what type of system is this? Isolated. Isolated. So what can you comment about the heat? Q equal to 0. So Q equal to 0 to pakka hai. Now, whenever there is a liquid which is being stirred, there is a mechanical energy which is imparted to the system. So as per the first law of thermodynamics, we know that the internal energy is equal to Q plus W. Now for an isolated or an adiabatic process, Q0 hai. Matlab, whatever is the internal energy that will be converted into the work, or whatever is the work done, it will be equal to the internal energy. So now the stirring of the liquid, is it increasing the internal energy of the system or not? Yes. Yes. तो अगर वो internal energy को increase करेगा तो that is equivalent to the work which is done by the surrounding on the system, क्योंकि यहाँ पर जो work done है वो positive होगा. ठीक है. So Q0 होगा and there will be increase in internal energy which will be equivalent to the increase in work also. Understood? Yes, sir. Next, a thermodynamic system goes from the state P1V to 2P1V and दूसरे में PV1 to P2V1. Then the work done in the two cases is 0 and minus PV. yes. Because अगर first case को consider करें तो here the volume is constant, meaning it's an isochoric process, and we know that for an isochoric process the work which was minus P external into delta V would become equal to 0. ठीक है. एक तो फ्री एक्सपांशन में वर्क 0 होता था वैक्यूम में, और दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क 0 होगा. ठीक है. और दूसरे केस में यू कैन सी P is remaining constant and there is a change in volume. So when P is constant, it will be an isobaric process, and for an isobaric process against the constant pressure P, the volume changes to V1 minus V1, hence it is equal to minus PV1. ठीक है. So from this parameters you can clearly understand first path is isochoric and the second is an isobaric. So the answer will be 0 and minus PV1 respectively. Next, an ideal gas is taken around the cyclic process or the cycle ABCA as shown in the PV diagram. The net work done by the gas during the cycle is equal to how do you find the work done graphically? Area under the curve. Thus, the work done in this cyclic process is equal to area under the graph. Okay. So now the area under the graph will be equal to the area of the triangle. So just apply the formula and you get the answer. Okay. So half into base into height. So if you look at the base, now यहाँ पर direction is also important. If you talk about the base, the volume is actually getting decreased. So it is decreased from 3V1 to V1. So how much is the difference? Minus 2V1. And pressure जो हो रहा है वो increase हो रहा है. So the pressure difference will be equal to 5P1. So 2 and 2 cancels and the answer would be minus 5P1V1. Got it? So which area we have to find? Sorry?
So which area do we have to find? Area under this cyclic process ABCA है ना, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। अब मान लो अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस इन अ सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, देयर इज दिस PV, let's say this is a cyclic path given in the clockwise direction, ठीक है, and let's define the point this A and this B. So अब अगर इस केस में आपको फाइंड करना है तो again the area under this cyclic path will be equal to the area Area of the circle. of the circle. So pi r square लगा दो, खत्म, ठीक है। अब दूसरा साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। यहाँ पर इफ यू ऑब्जर्व इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग द वर्क डन बाय द गैस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? वर्क इज डन बाय द गैस, इट्स अ वर्क ऑफ व्हाट? वर्क कैन बी डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग या बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, यानी गैस ना। Yes, sir. So when the work is done by the system on the surrounding, it is a work of expansion or compression. Expansion. Obviously गैस एक्सपांड करेगा तभी तो वर्क करेगा ना सराउंडिंग पे, ठीक है। तो वर्क ऑफ एक्सपांशन, और इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या बोला था? व्हेन, मीनिंग द वर्क ऑफ एक्सपांशन इज ऑलवेज Negative. नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव वैसे तो कैलकुलेशन करके भी मैंने बताया, बिकॉज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम इज नेगेटिव एंड द डिफरेंस इन द प्रेशर इज पॉजिटिव, net work or the net area what we are getting is negative, and that is confirmed because it is the work which is done by the gas, ठीक है, समझा? yes or no? Yes, sir. अब इस केस में भी अगर हम बात करें तो let us divide this circle into two halves, दो सेमी सर्कल में। if I consider the above half, then the area under the curve would be this much, पूरा आएगा नीचे तक, right? Yes, sir. और अगर नीचे वाला सेकेंड हाफ की बात करूं तो उसका एरिया अंडर द कर्व इतना आएगा। सो नाउ व्हेन यू सबट्रैक्ट, एक्चुअली जो एरिया बचेगा दैट वुड बी एरिया ऑफ द सर्कल। दैट्स व्हाई फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस हम जो वर्क कैलकुलेट करते हैं, इट्स इक्वल टू द एरिया अंडर द साइक्लिक पाथ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, जो भी बोलो। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। नाउ इफ आई कंसिडर द अबव हाफ, you can observe the volume in that case is going on. Increasing. साइक्लिक में जाओ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर लेट से CD पाथ कर लेता हूँ, तो ये जो C to A और A to D वाला पाथ है, कैन आई से हियर द पाथ इज रिलेटेड विद एक्सपांशन, जिसका वर्क जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. दूसरा, when I moving from D to B and B to C, this will be a case of Contraction. contraction, and in that case we know that the work is positive. Now which area you are getting larger, expansion wala ya compression wala? Expansion. Expansion. So net work will be work of, Expansion. and in that case the work of expansion would be having a negative sign. तो अब यहाँ से एक सिंपल सा कंक्लूजन कर रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया है that whenever there is a cyclic process, for any cyclic process, as per the chemical thermodynamics convention, the clockwise work will be, Negative. ये clockwise है ना, clockwise path में the work will be negative always, and anti clockwise अगर रहा, anti clockwise path में,
then the work will have a positive sign. तो साइन कन्वेंशन में कोई टेंशन ही नहीं है. यहाँ पर आप देखो तो साइक्लिक था, तो खाली एरिया भी अगर आप कैलकुलेट करते हो 5p1 v1 आ जाएगा, and then just put a sign which will be negative because it is a clockwise path. समझा? Yes, sir. तो मैंने प्रूव भी करा दिया और फिर एक सिंपल सा समरी. ठीक है, लेकिन फिजिक्स के केस में ना ये साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा. Clockwise is positive and anti-clockwise is negative. Why? Because physics में whatever sign conventions are taken, they are with respect to surroundings and not with respect to system. System की वजह से surroundings में क्या effect हो रहा है? That is how physical thermodynamics is dealt with, because it is the thermodynamics of motion. Thermodynamics of motion, ध्यान रखना. इसीलिए फिजिक्स में जो थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ोगे मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाता है. बिकॉज केमिस्ट्री में हम सिस्टम के हिसाब से देखते हैं और फिजिक्स में सराउंडिंग के नजरिए से देखते हैं. इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ हाउ द थिंग्स आर परसीव्ड, नथिंग एल्स. कॉन्सेप्चुअली जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं वो वहीं पे सेम है, कन्वेंशन खाली अलग है. समझा? Yes. Many of the cameras are off. Rahul, हाँ सर. निकाल दो, जिनका कैमरा ऑफ है निकाल दो. ठीक है, चलेगा सर. हाँ, चलो. This is understood? Yes, sir. Super. Next, coming to first law related questions. A system absorbs 600 joule of heat and work equivalent to 300 joule is done on its surroundings. The change in internal energy is. Now wording से ही clear है वैसे तो. 300. Internal energy is the energy account of the system. अकाउंट में पहले 600 रुपये डाले और 300 रुपीज को निकाल दिया, तो अब अकाउंट में बचा कितना? 300. ठीक है, या फिर 600 जूल एब्जॉर्ब्ड इज प्लस क्यू एंड वर्क डन ऑन द सराउंडिंग इज माइनस डब्ल्यू. ठीक है, सो व्हेन यू अप्लाई डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, उसमें 600 माइनस 300 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 300. अंडरस्टूड? Yes, sir. Next, in an isochoric process, the increase in internal energy is equal to what? Heat absorbed, heat evolved, work done, या heat absorbed and work done both? Heat absorbed. Heat absorbed. And let's see, delta U equal to Q plus W. Isochoric process में what is equal to 0? W. W, ये गया. So now whatever is the increase in internal energy, that will be equal to the heat which is absorbed, plus delta U equal to plus Q, या फिर minus delta U equal to minus Q. तो as per thermodynamics के relation से हमने सारे processes के लिए statements को लिखा भी है. ठीक है, तो उसी statement का ये एक MCQ है. It's equal to the heat absorbed. Next, a sample of liquid in a thermally insulated container or a calorimeter is stirred by a motor. Taking liquid as a system for this process, choose the appropriate option. Similar question है. Four. It's 4. तो सेम ही क्वेश्चन है, वहां पे खाली W और Q का रिलेशन पूछा था, या डेल्टा U भी पूछा है. अब डेल्टा U W के बराबर ही होता है, बिकॉज व्हेन यू से थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, Q तो 0 हो चुका है, मतलब डेल्टा U इक्वल टू W है, मतलब व्हाटएवर इज द डेल्टा U का चेंज, W का चेंज विल बी इक्वल, एंड द आंसर इज 4. नेक्स्ट, द इंटरनल एनर्जी चेंज when a system goes from the state A to B is 40 kilojoule per mole, delta U. If the system goes from A to B by a reversible path and returns
to state A by an irreversible path, what would be the net change in internal energy? एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आंसर सामने है। There is a path A to B, ठीक है। A to B में इंटरनल एनर्जी चेंज 40 किलो जूल है। अब सिस्टम जो है A to B एक रिवर्सिबल पाथ से जा रहा है और वापस B to E एक इरिवर्सिबल पाथ से आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? Now just apply the concept of state function and path function, you will get the answer. What is internal energy? Is it a state function or a path function? State function. And state function is that thermodynamic property which only depends on the Initial and final state. initial and final state. पाथ कौन सा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो उसने शुरू किया ए से और घूम फिर के बी पे आ गया, सॉरी वापस ए पे आ गया, तो क्या होगा इंटरनल एनर्जी चेंज? ऑफ कोर्स सोचना ही नहीं है। अगर यहाँ पर वर्क डन के रिलेटेड क्वेश्चन होता तो रिवर्सिबल का वर्क और इरिवर्सिबल का वर्क अलग है और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके आंसर ऑब्टेन करते हैं, समझा? बट अगर स्टेट फंक्शंस है तो पाथ का कोई लेना देना ही नहीं है ना। अंडरस्टूड? ठीक है। सो वंस अगेन स्टेट फंक्शन जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। वेदर इट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, दे आर ऑल जस्ट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। मतलब इस केस में इन सारी प्रॉपर्टीज जो है उसकी वैल्यू 0 होगी, खाली हीट और वर्क के लिए नॉन जीरो वैल्यू आएगी, एंड दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट व्हिच विल बी carried out. Obviously उसके लिए कुछ और information भी दिया जाएगा। Okay, so that completes the important MCQs from the 3 of the sections A, B and C. Now coming to the next part, second law of thermodynamics. Now what led to the second law of thermodynamics? First we will understand that, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो इफ यू हैव टू बॉडीज, वन इज एट अ हायर टेम्परेचर द हॉट बॉडी एंड अदर इज एट अ लोअर टेम्परेचर दैट इज द कोल्डर बॉडी। So practically the heat exchange or the heat flow in this case will always be from Hot body to cold body. hot body to cold body, because heat is a form of energy exchange which takes place due to temperature difference, बराबर? ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को तो डिफाइन ही नहीं किया था, उसने बोला कि जस्ट टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होना चाहिए। अब मान लो मैं कोई सिस्टम में एक कोल्ड ऑब्जेक्ट, एक ठंडा सा ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ठीक है, दिस इज एट अ लोअर टेम्परेचर, और सिस्टम का आजू बाजू का जो टेम्परेचर है ना दैट इज एट अ हायर टेम्परेचर, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्व्ड है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोल्ड बॉडी अपने आसपास का एनवायरमेंट में से एनर्जी को ले ले और हीट अप होकर इसका टेम्परेचर बढ़ जाए? कैन दिस हैपन? यस, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर भी है, बराबर, ठीक है। अब मान लो इसमें हॉट बॉडी को कंसिडर करें, तो हॉट बॉडी जो है वो भी तो सराउंडिंग से एनर्जी लेकर और हाई टेम्परेचर पे जा सकता है, जा सकता है कि नहीं? उसने एनर्जी लिया और अपने
बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेस कर दिया, बराबर। तो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एनर्जी तो कंजर्व्ड है, हमने ना तो एनर्जी क्रिएट की ना डिस्ट्रॉय की, वी हैव जस्ट एब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट एंड यूज्ड इन द अदर पार्ट, so still the energy is conserved. So is that allowed as per first law? Yes. समझ है ना, अलाउड है, आ रहा है समझ में। तो थर्मोडायनामिक्स में डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में कोई बात नहीं की थी। अब एक सिंपल सा और एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। टेल मी हाउ डज द व्हीकल वर्क? Petrol is burned. By the combustion of the fuel, simple, बराबर। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ सीएनजीज, मतलब बेसिकली कंबशन ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। अब अगर हम व्हीकल्स की बात करते हैं तो अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है एयर में, उसमें भी तो एनर्जी है, एयर हैज एनर्जी, डू यू अग्री? Yes, sir. Yes. So as per first law, can I say that the vehicle can absorb the energy from the surrounding and use it to convert it into work, and that's how the vehicle can work? तो हमें तो बर्निंग ऑफ फ्यूल की जरूरत ही ना पड़े, मतलब सराउंडिंग की एनर्जी ले ली, वर्क में कन्वर्ट कर दिया और मैकेनिकल एनर्जी में वापस सराउंडिंग को दे दिया। हमने ना तो एनर्जी क्रिएट की ना डिस्ट्रॉय की, हमने एनर्जी कंजर्व रखा, बराबर। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली या स्पॉन्टेनियसली दिस थिंग्स नेवर हैपन, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है। तो हम जब बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे हीट फ्लो की, तो spontaneously it will always flow from the higher temperature to lower temperature. The reverse is never ever true. The reverse is never ever true. ठीक है। Though as per the first law of thermodynamics we can theoretically say कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन practically या spontaneously ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता है वो भी हम समझते हैं, एंड उससे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। लेट्स सी दिस वन। बेसिकली हीट इंजन या फिर जो अपने व्हीकल्स है वो कैसे चलते हैं, हाउ डज इट वर्क, दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग थ्रू दिस डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले वी रिक्वायर अ कंबस्टर। तो कंबस्टर इज दैट थिंग वेयर द फ्यूल and oxygen would be combined and it will be burnt, ठीक है। तो here because of the burning there is some heat generated, तो इसी के लिए हम इसको बोलेंगे high temperature thermal reservoir, ठीक है। तो there is the fuel which is burnt with the oxygen, due to combustion there is some energy released. अब वो जो energy है that will be used to heat up the gas, and that gas in turn will get expanded, and because of the expansion अगर सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट देखे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपांड हो जाएगा and it will do some work against the surrounding, and because of that it will move the piston upwards. तो ये गैस जो काम कर रहा है that is basically to move the piston upwards, correct? अब जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा उसकी वजह से जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें मोशन आएगा, and finally that motion will drive the vehicle, बराबर। अब मान लो यहाँ पर because of the burning of the fuel the temperature is TH over here, ठीक है। तो ये थर्मल रेजर्वोयर का TH टेम्परेचर है, इसको हम हाई टेम्परेचर थर्मल रेजर्वोयर कंसिडर कर रहे हैं, बराबर। अब जो हीट इंजन है जहां से वर्क यानी इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट आया, ठीक है, उसका भी टेम्परेचर रेज होगा, ठीक है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द टेम्परेचर विल बी इक्वल टू TH, मतलब नाउ बोथ द सिस्टम विल अटेन अ Thermal equilibrium. thermal equilibrium. Now once they attain thermal equilibrium, will there be any more work be done by the heat engine? भाई इक्विलिब्रियम आ गया है तो वर्क कहां से होगा, मतलब ऐसा हो गया कि आपने गाड़ी चालू की, थोड़ा आगे बढ़ा और रुक गया, थोड़ा काम कर दिया उसने और रुक गया, बराबर। अगर ये सिस्टम ऐसे काम करता तो थोड़ा सा गाड़ी चलता और रुक जाता, बट ऐसा होता नहीं है, वी कैन ड्राइव द व्हीकल कंटिन्यूअसली। तो अब यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ये जो टेम्परेचर है आई हैव टू अगेन ड्रॉप इट सो दैट द थर्मल इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन द मोशन विल बी कंटिन्यूड। तो इसको क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर हीट इंजन को एक कोल्डर एनवायरनमेंट में रख देते हैं, लो टेम्परेचर थर्मल रेजर्वोयर, जिसको हम हीट सिंक भी बोलते हैं, जहां पर वो हीट को लेते जाएगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली लोअर होना चाहिए, तो इसको हम टीएस बोल रहे हैं। टीएस मतलब हीट सिंक, बराबर। अब ये कोल्डर एनवायरनमेंट में रख दिया तो हीट इंजन से इसने हीट ले लिया, Q2 हीट। अगेन द टेम्परेचर ऑफ द हीट इंजन ड्रॉप्ड, एंड वो ड्रॉप होने की वजह से वापस यहाँ पर क्या होगा, अगेन द वर्क विल बी डन अगेंस्ट द सराउंडिंग। ठीक है, पिस्टन ऊपर मूव करेगा, तो बेसिकली यहाँ पर पिस्टन का कंटिन्यूअस अप डाउन मूवमेंट हो गया। दैट इज हाउ द हीट इंजन्स आर वर्किंग, राइट। यही तो बेसिक प्रिंसिपल है उसका, और ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस में कंटिन्यूअसली होते जाता है, करेक्ट। Yes, sir. सो नाउ अब अगर मैं बात करूं हीट इंजन के एफिशिएंसी की, जनरली व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सच सिस्टम्स? अप्रॉक्स क्या होता है एफिशिएंसी? इज इट 70, 80, 100 और इवन लेसर देन दैट? 70 से कम क्या हो सकता है? अपना जो व्हीकल्स में फ्यूल बर्न होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? एनी आइडिया? लो। हाउ मच लो? इट्स अराउंड 40%, 35 to 40%। मतलब अगर 100 जूल की एनर्जी आप दे रहे हो तो उसमें 40 जूल ही वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी 60 जूल किधर गया? Is lost as sound. लॉस्ट एज साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, मोशन, मैकेनिकल। ठीक है, तो बहुत सारे लॉसेस, फ्रिक्शन का लॉसेस होता है। ठीक है, सो देयर आर दीज एनर्जीज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, फ्रिक्शन, बराबर। इसीलिए जो एफिशिएंसी है वो हमेशा कम रहती है। ठीक है, एंड एफिशिएंसी हियर कैन बी कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ द हीट सोर्स एंड द हीट सिंक। इसको हीट सोर्स भी बोलते हैं, हीट सोर्स एंड हीट सिंक। नाउ टेल मी, for having a higher efficiency, this temperature difference, the higher and the lower, should be very high or very low? Very high. Obviously very high, because अगर low रहेगा तो जो piston का movement है वो कम होगा, piston का movement कम होगा तो work done भी कम होगा। तो obviously piston का movement अगर ज्यादा करवाना है, work done ज्यादा करवाना है, तो temperature का difference भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब can I say the efficiency is directly proportional to the difference of TH minus TS, and this efficiency can be calculated as TH minus TS upon TH into 100. This is the percentage efficiency of heat engine, और ये जो cyclic process है, this was developed by Carnot, इसी को बोलते हैं Carnot cycle। So यहाँ पर Carnot cycle में the efficiency, thermodynamic efficiency is given as output by input। output क्या है? work done। input क्या है? जो हमने heat supply किया, इसीलिए W by Q। और इसका टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेशन है, तो T2 minus T1 upon T2 परसेंटेज में लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। दैट्स व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच आई जस्ट डिराइव्ड ओवर हियर। समझा? Yes, sir. अब यही जो वर्किंग है ऑफ हीट इंजन एंड द रिलेशन विद द कार्नोट साइकिल, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए टू एक्चुअली एक्सप्लेन द सेकेंड लॉ, ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सो आई जस्ट डिस्कस्ड इट। ठीक है, तो नाउ टेल मी, कैन वी कन्वर्ट 100% हीट इनटू 100% वर्क? Is it possible practically to convert 100% of heat into 100% of work? No. नहीं, because losses होते हैं और losses की वजह से 100% efficiency किसी भी heat engine की ला पाना अभी तक till date is practically impossible। ठीक है, तो ये वाला wrong।
But tell me, is the reverse thing possible? 100% वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? Just try rubbing your hands. So when you are rubbing your hands, you are doing some work, and that work is actually converted into Heat. हीट. अगर आप बहुत जोर जोर से रब करोगे तो साउंड भी क्रिएट होगा, तो थोड़ी एनर्जी साउंड में चली जाएगी. तो स्लोली रब करोगे तो आप वो साउंड को भी नेग्लिजिबल कर रहे हो. तो आप जो काम कर रहे हो वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. मतलब 100% वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट करना प्रैक्टिकली फीजिबल है, बट हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट करना प्रैक्टिकली स्पॉन्टेनियसली फिजिबल होता ही नहीं है. समझा? Yes, sir. Now, the second law of thermodynamics was introduced basically to understand the direction of heat flow, which the first law of thermodynamics didn't at all talk about. Second law का आने का सबसे बड़ा reason था direction of heat flow को define करने का. अब obviously उसके related और उसके बाद बहुत सारे second law के statements आप देखोगे. Physics में भी n number of statements हैं, chem में भी है, but more or less they are related to this heat engine and the direction of heat flow. So let's understand the statements. First point, first law does not fix the direction of heat flow. वो उसका flaw था. ठीक है? It also does not specify the feasibility of the reaction. According to first law, any process when energy remains conserved is feasible. जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि गाड़ी पड़ी है, एनर्जी सराउंडिंग में से ले ले और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले. एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो गाड़ी अपने आप चलनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. इट्स नॉट फिजिबल. ठीक है? तो अब सेकेंड लॉ फिक्सेस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो and also talks about feasibility of a process. So statement number 1, the spontaneous flow of heat is always unidirectional and it always flows from higher temperature to lower temperature. Got it? Yes, sir. ठीक है? फर्स्ट लॉ के हिसाब से आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0, तो Q बिकम्स इक्वल टू -W. इसके हिसाब से हीट वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बट अगेन वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है. तो फर्स्ट लॉ ऐसा बोलता है, लेकिन ऑब्वियसली ये फिजिबल नहीं था. तो अब सेकेंड लॉ का एक और स्टेटमेंट, हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क without producing permanent changes either in the system or in the surroundings. That is where the losses come into picture. ठीक है? और फिर हीट इंजन के रिलेटेड no machine has yet been made that has an efficiency of unity. कोई भी हीट इंजन या कोई भी मशीन आज तक नहीं बनाया गया है जिसकी एफिशिएंसी 1 हो या 100% हो. Understood? Yes. So these are the three important statements associated with the second law. Second law के related एक और statement है entropy के related, जो हम later on आगे के part में discuss करेंगे. Carnot cycle I have explained. Now coming to the next part, the enthalpy. Enthalpy we have already said it is equal to the heat at Constant constant pressure. pressure. And once again एक और part में internal energy is always equal to the heat at constant volume ना. Yes, ये sir. दो चीज तो दिमाग में फिट कर लो. Enthalpy is the heat at constant pressure and internal energy is the heat at constant volume. Now मैंने लास्ट सेशन में ही आपको बताया था कि एंथैल्पी जो है that is equal to the sum of internal energy and the pressure volume work which is done between the system and the surrounding. H is equal to U plus PV. ठीक है?
बट थर्मोडायनामिक्स में वी डोंट डील विद द एब्सोल्यूट वैल्यूज, इनिशियल में कितना है, फाइनल में कितना है, वो हम डील नहीं करते हैं और प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना भी डिफिकल्ट होता है. So we always deal with the changes associated, मतलब delta H. So here I can say delta H is equal to delta U plus delta of PV. ठीक है. अब यहाँ पर this formulas can be used in different ways. मान लो अगर कोई प्रोसेस में pressure and volume both are changing, pressure and volume both are changing. मान लो there is 1 atmosphere and 10 liter. It is changing to 5 atmosphere and let's say 2 liters. तो यहाँ पर इस प्रोसेस में आप देख सकते हो कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. मतलब इस केस में फॉर्मूला बेसिकली कैसे अप्लाई करोगे, डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1. ठीक है. या फिर मान लो अगर P और V में से कोई एक कांस्टेंट है, then I can modify the formula as delta U plus V delta P आइसोकोरिक के लिए, या फिर I can also use the formula as delta U plus P delta V जो हम आइसोबारिक के लिए या अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के लिए जब वर्क कैलकुलेट करते हैं तो ये यूज करते ही है. समझा? Yes, sir. So to calculate the enthalpies when the internal energy is known or directly or indirectly given in the question, you can either use delta PV, V delta P or P delta V depending on the parameters given and depending on the type of process involved. ठीक है. इनफैक्ट ये वाला जो है वो आइसोथर्मल वाला केस हो गया, ये आइसोकोरिक हो गया और ये आइसोबारिक हो गया. आता है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ए डायमेटिक में Q तो 0 हो जाता है, तो उस हिसाब से डेल्टा U जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू W, एंड इसीलिए वर्क डन फॉर एन ए डायमेटिक प्रोसेस वाज नथिंग बट इक्वल टू N into CV into डेल्टा T या P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1. आ रहा है कुछ याद? इसलिए बोलता हूं पढ़ो. ठीक है. तो दैट्स हाउ वी गेट द फॉर्मूला. अगर डेरिवेशन वहां पर हमने नहीं भी किया है तो ये देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. Q 0 होता है ए डायमेटिक में, तो डेल्टा U W के बराबर. डेल्टा U एक्चुअली क्या है, NCV डेल्टा T, और CV को हम लिख सकते हैं NR अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T, और NR डेल्टा T क्या है, डेल्टा PV, इसीलिए तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 का फॉर्मूला आया ना. वन लाइनर डेरिवेशन. अब ये डेरिवेशन आपको फिजिक्स में काफी डिटेल में है, बट एक सिंपल वे में समझना है कंडीशन के हिसाब से, तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया. समझा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो ये था एंथैल्पी का रिलेशन एंड द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस. आगे द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर अ केमिकल रिएक्शन. अब मान लो कोई केमिकल रिएक्शन दिया है, let's say Haber's process N2 plus 3H2 gives you 2 moles of ammonia, all in the gaseous state. Now इस particular reaction के लिए अगर मुझे work done calculate करना है, तो for a process we normally take minus P external delta V. ठीक है. But for an ideal gas we know that PV is equal to nRT. बराबर. So on the left hand side if I have P delta V and this particular reaction is done at a constant temperature. क्यों constant temperature वो भी बताता हूँ. ये reaction अगर देखोगे तो Haber's process का एक reversible reaction है, and we know that for a reversible reaction at equilibrium the temperature remains constant. मतलब R और T अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर मोल्स चेंज होते हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स,
और उसी मोल्स के चेंज को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एन जी, सुना तो होगा। मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस द मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स, मतलब जो माइनस पी डेल्टा वी है वो फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा एन जी आर टी। सो वर्क डन इन अ रिएक्शन इज गिवन एज, रादर इसको मैं हाईलाइट करता हूं, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए माइनस ऑफ व्हाट इज डेल्टा एन जी, हेबर्स का -2 -2 इंटू आर टी, मतलब ये +2 आर टी हो जाएगा। अब जो भी टेम्परेचर है आर के साथ उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो एंड यू गेट द वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। और अगर पॉजिटिव है इसका मतलब देयर इज अ वर्क विच इज डन by the on the system, work is done by the surrounding on the system, meaning it is a work of compression। तो आपको साइन कन्वेंशन पूछा जाए तो सिंपली यहाँ पर डेल्टा एन जी को रिलेट करके देखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इफ आई हैव H2 plus I2 giving 2HI, what is the work done in this case? 0 0, because डेल्टा एन जी 0 है, therefore वर्क भी 0 होगा। अब वर्क 3 केसेस में 0 हो गए, बताओ कौन कौन सा केसेस, 1 2 3। 2 तो पहले बताए, एक आपके सामने है। आइसोकोरिक आइसोकोरिक में द वर्क डन इज 0 बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट, इन Yes. वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है तभी भी आपका वर्क डन 0 होगा। एंड तीसरा, व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछते हैं वर्क डन 0 कब आ सकता है, तो आप ये 3 चीज याद रखो। याद क्या रखना है, कॉन्सेप्ट सिंपल है ना। आइसोकोरिक में डेल्टा वी 0 होता है इसीलिए W 0, फ्री एक्सपांशन में P एक्सटर्नल 0 होता है इसीलिए वर्क 0, और रिएक्शन के केस में जब डेल्टा NG 0 होता है तब वर्क 0 होता है। सिंपल, यस। यस सर Okay, so now I can also derive the relation between delta H and delta U with regards to a chemical reaction. So we know that delta H equal to delta U plus P into delta V. उसी P delta V को I have written delta NGRT. Therefore, अगर enthalpy find करना है तो delta U plus delta NGRT. Clear है ये relation? यस सर Yes, sir. ठीक है। अब इसमें 3 केसेस, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच वुड बी ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल एज कंपेयर्ड विद डेल्टा यू। ग्रेटर ऑब्वियसली बिकॉज समथिंग विल गेट एडेड टू द इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एन जी अगर निगेटिव आया तो डेल्टा एच लेसर होगा, और अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाता है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू Equal. इक्वल है, क्योंकि कोई वर्क ही नहीं हुआ है भाई। अगर कोई वर्क ही नहीं हुआ है तो एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर ही होगा ना, लॉजिकल है। यस सर तो शॉर्टकट ये है कि अगर ये ग्रेटर है तो डेल्टा एच ग्रेटर हुआ, अगर ये लेसर है तो डेल्टा एच लेसर हुआ, अगर ये इक्वल है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल है, खत्म। दिमाग भी नहीं लगाना है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल है। Right. यस सर चलो, नाउ कमिंग टू द definition for enthalpies of different processes. So the topic is enthalpy of physical changes and atomic or molecular changes. Now physical changes मतलब physical state का changes, ठीक है। तो
तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 physical states, solid, liquid and vapor is given. Now we know that from solid to liquid it's called melting, and melting मतलब fuse state में आना, यानी इसको fusion भी बोल सकते हैं. So the enthalpy change for the conversion of 1 mole of solid to liquid under standard condition of temperature and pressure is called the standard enthalpy of fusion. कभी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करते हैं ना, स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले नॉट आता है, नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी. तो इसको हम डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन. अच्छा, स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, इट शुड ऑलवेज बी डिफाइंड फॉर 1 मोल का कन्वर्जन, ऑलवेज 1 मोल. ठीक है, standard enthalpies are to be defined for 1 mole. Secondly, it has to be defined for the standard conditions of temperature and pressure, yani STP, standard conditions of temperature and pressure. 1 mole और standard condition पे जब भी हम define करते हैं किसी भी enthalpies के लिए, तो उनको हम standard enthalpy बोलते हैं. आता है समझ में? yes sir, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी का यूनिट हमेशा हमेशा क्या होगा? स्टैंडर्ड का joule per mole, जूल पर मोल. पर मोल है यानी वो मोलर एंथैल्पी एक्चुअली हो गया, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हो. ठीक है, और एंथैल्पीज बहुत बड़ी वैल्यूज के साथ होता है, तो जूल नहीं किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. एंड द कॉमनली यूज्ड यूनिट इज किलो जूल पर मोल. ठीक है, अगर कहीं पे सिर्फ किलो जूल है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं है. ठीक है, समझा क्या? yes sir, अगेन आता हूं मैं हेबर्स प्रोसेस के ऊपर. N2 + 3H2 गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. यहां पर आपको देखा रखा है डेल्टा H इज इक्वल टू -x किलो जूल्स. अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना है? -x/2, सुपर. क्योंकि यहां पर जो x किलो जूल दिया है ना, दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड फॉर 2 मोल्स. लेकिन जैसे मैं स्टैंडर्ड बोलता हूं तो आपको 1 मोल के लिए ढूंढनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 मोल के लिए -x/2 होगा. ऐसे सिंपल सिंपल चिंदी क्वेश्चंस आते हैं, एंड दे हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस इयर्स. ठीक है, चलो बैक टू द फिजिकल प्रोसेसेस. सो सॉलिड एंड लिक्विड में व्हेन आई से डेल्टा H नॉट ऑफ फ्यूजन, it will indicate that there is a conversion of 1 mole of solid into liquid under the standard conditions of temperature and pressure. ठीक है, कहीं बार इसको डेल्टा H FUS भी लिखते हैं, 3 लेटर एब्रीविएशन. ठीक है, जैसे ऊपर यूज किया हुआ है. लिक्विड टू वेपर्स is the vaporization, evaporation, and solid to liquid directly is called sublimation. तो डेल्टा H SUB यूज करते हैं. ठीक है, अब अगर मैं रिवर्स प्रोसेसेस की बात करूं, रिवर्स, देन व्हाट इज लिक्विड टू सॉलिड? पानी टू बर्फ? हेलो, अरे लिक्विड टू सॉलिड के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ, अरे भाई पानी बर्फ बनता है कि नहीं बनता है? क्या बोलते हैं उसको? freezing, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंथैल्पी होगी दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. ठीक है, उसके बाद वेपर टू लिक्विड इज कॉल्ड condensation,
कंडेंसेशन, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड सब्लिमेशन के रिवर्स प्रोसेस को Solidification. Solid. सॉलिडिफिकेशन या इसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। तो डेल्टा H नॉट SOL सॉरी, लेकिन SOL एक्चुअली सोल्यूशन के लिए दिया है, तो यू कैन जस्ट राइट इट एज सॉलिडिफिकेशन या सॉलिड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट स्टैंडर्ड एब्रिविएशन जो है फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन के लिए दिया गया है। बाकी रिवर्स प्रोसेसेस के लिए उसकी एंथैल्पी जस्ट साइन चेंज के साथ हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा, इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इज इट एंडो और एक्सो? Endo. ऑब्वियसली, तो जो भी प्रोसेसेस यहाँ पर डाउन टू अप जा रहे हैं वो सारे एंडो प्रोसेसेस है, चाहे वो फ्यूजन हो, वेपराइजेशन हो या सब्लिमेशन हो, बट ऑल द रिवर्स प्रोसेसेस वुड बिकम एक्सो, करेक्ट। हीट निकालेंगे तभी तो ठंडा होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. ठीक है। तो अगर कोई A to B प्रोसेस फ्यूजन वाला है, A to B, ठीक है, तो B to A विल इंडिकेट फ्रीजिंग, और इसका जो भी एंथैल्पी है +6 किलो जूल फॉर एग्जांपल, B to A का -6 हो जाएगा। मतलब थर्मोडायनामिक्स में व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, देयर एंथैल्पीज आर नेगेटेड, द साइन ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस। अगर यहाँ प्लस डेल्टा H है तो यहाँ माइनस डेल्टा H हो जाएगा, ओके। So these are the enthalpies of physical changes. अब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर चेंजेस में वेल नोन चीजें हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में दिस इज द एंथैल्पी एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ Cation. कटायन। नाउ इसका डेफिनेशन जब हम बोलते थे तो वी डिफाइन इट एज द मिनिमम एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell of an atom in its Isolated gaseous ground state. isolated gaseous state। मतलब अगर मैं सोडियम से सोडियम का कटायन बनाने की कोशिश करूं, तो सोडियम तो एक्चुअली मेटेलिक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो क्या यहां पर विद दिस फिजिकल स्टेट कैन आई डिफाइन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी? No. नो। क्या करना पड़ेगा पहले? Converted to gas. And what is conversion from solid to gas called? Sublimation. मतलब यहां पर पहले सब्लिमेशन की हीट देनी पड़ेगी आपको, सबसे पहले डेल्टा H सब्लिमेशन लगेगा, और फिर गैसियस स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वी गेट द गैसियस कटायन, and this is the ionization enthalpy delta H ION। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, if there is metallic solid of sodium, then the ionization enthalpy for this Na solid to Na plus gaseous will be equal to two enthalpies, that is sublimation plus ionization। मतलब यहाँ पर अगर x की एनर्जी दी है और यहाँ पर y की एनर्जी, x प्लस y आपका आंसर होगा, ना कि सिर्फ y होगा, दैट वुड बी रॉन्ग। Am I clear on that? Yes, sir. Super. Now what is the reverse of ionization enthalpy? Reverse. Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, and that is defined for the non-metals, and basically it is associated with the formation of anion, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास क्लोरीन गैसियस है, Cl2 गैसियस, क्या मैं इससे डायरेक्टली Cl माइनस का कन्वर्जन डिफाइन कर सकता हूं? No. नहीं। क्या प्रॉब्लम है? It should be an atomic state. इट शुड बी एन एटॉमिक स्टेट। तो पहले तो मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए वी हैव टू सप्लाई अगेन सम एनर्जी, ठीक है। तो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन अ मॉलिक्यूल इनटू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स is called enthalpy of atomization, enthalpy of
एटोमाइजेशन. मॉलिक्यूल टू एटम्स इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. और मुझे एक मोल का अगर क्लोरीन एटम चाहिए तो सबसे पहले तो Cl2 गैस मुझे 2 क्लोरीन देगा ना गैसियस स्टेट में. अगर मुझे एक ही क्लोरीन एटम चाहिए तो आई शुड बी यूजिंग हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस. यस और नो? Yes, sir. So what will be the enthalpy equal to now? Delta H by 2. बाई 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक मोल के लिए था. अब आधा मोल है तो आधा हो जाएगा एनर्जी. मतलब अगर कोई रिएक्शन में इफ वी आर multiplying or dividing some factor, then enthalpies में भी same changes occur होंगे. ये चीज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए भी करते थे ना. रिएक्शन में छेड़खानी की तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी छेड़खानी होती है. स्टोइशियोमेट्री पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. सुपर. अब मेरे पास क्लोरीन गैसियस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवा के हम क्लोरीन अनायन बना देंगे इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. हियर द एनर्जी associated with this is called electron gain enthalpy, which is an exothermic process. तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा H नेगेटिव आएगा. तो अगेन if we start from the chlorine gaseous, Cl2 gaseous rather, and if I want to reach Cl minus gaseous, then the enthalpies associated for this conversion would be the atomization enthalpy and electron gain enthalpy का sum. बट अगर एक मोल से शुरू करेंगे तो मेरे पास 2 moles ऑफ क्लोरीन गैसियस आएगा. अगर एक मोल के लिए करना है तो अगर मुझे एक ही क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूं तो फिर पहले हाफ मोल लूंगा और बाद में उसको Cl माइनस गैसियस करूंगा. अकॉर्डिंगली उसकी एंथैल्पीज चेंज हो जाएगी. समझता है इतना? ओके. और एक चीज, जब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इंटरनली? Breaking the bond. And is there any enthalpy associated with the breakdown of the bond within the molecule? Bond dissociation enthalpy. So can I say कि atomization enthalpy or bond dissociation enthalpy is one and the same? हाँ कि नहीं? Yes, sir. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड्स तोड़ दो तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, एंड दैट विल बी इन टर्न इक्वल टू द एटोमाइजेशन एंथैल्पी ओनली, जिसको हम बॉन्ड एनर्जीज भी बोलते हैं. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी वन एंड द सेम. तो ये सब हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में भी कर चुके हैं, नथिंग न्यू इन इट. बस खाली मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि सोडियम सॉलिड से अगर शुरू किया तो Na+ गैसियस तक पहुंचने के लिए आपको 2 पार्ट्स में एंथैल्पीज या एनर्जीज देनी पड़ेगी. एक तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए और फिर उसको कटायन में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल आते हैं कि कहां से कन्वर्जन कहां तक करना है, उसके लिए व्हाट वुड बी द एंथैल्पीज. फाइन. नाउ coming to a very important part, the 3 enthalpies and their relation: hydration enthalpy, lattice enthalpy, solution enthalpy. और ये भी हम कर चुके हैं. कहाँ कर चुके हैं? हाँ, Chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग, सल्यूबिलिटी का जब कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग के भी पहले मैंने एस ब्लॉक में बता दिया था. ये any solid, if it wants to get dissolved in water, the condition is Hydration enthalpy greater than lattice enthalpy. सुपर. ठीक है, तो हमें पता ही है, होना चाहिए, जो भी है. ठीक है, पता है या पता होना चाहिए, डिपेंड्स, डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. बट sorry, lattice energy is simply the energy to break down the bonds within the lattice of an ionic crystal. यानी NaCl के अंदर Na+ और Cl- के बॉन्ड्स के बीच में
जो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस एंथैल्पी, व्हिच इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा एच एल। ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब whenever a solid gets dissolved into water, it first of all breaks down into ions. Those ions get associated with the water and surround by the water molecules because of the polarity of hydrogen and oxygen. ठीक है। In fact, the Na plus ion gets surrounded with how many water molecules? 6. 6, and that is also called its Coordination number. superb coordination number. Na plus 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन के थ्रू एसोसिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं Na प्लस हाइड्रेटेड। ठीक है। और इसी में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और फाइनली जब सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है, तो द एंथैल्पी एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द डेल्टा एच सॉल या डेल्टा एच सॉल्यूशन। अब आपस में इनका रिलेशन, लेट्स से आई हैव अ NaCl solid. When I dissolve in excess of water, it will get converted into Na plus aqueous hydrated ions, right? And Cl minus aqueous. हाँ कि नहीं? Yes, sir. So this conversion of the solid dissolved in water forming a solution is called enthalpy of solution. बोलो, ये है ना आपका डेल्टा एच सॉल। Yes, sir. मैं बोलो। अच्छा, अब actually when the solid is dissolved in water, first step में it is broken down into Na plus and Cl. Na plus and Cl minus। तो पानी में जाने से पहले तो उनका फिजिकल स्टेट गैसियस होगा, और फिर जैसे ही पानी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो Na प्लस गैसियस Na प्लस एक्वियस में कन्वर्ट होता है। डू यू अग्री? Yes, sir. Now, what is the enthalpy associated with the breakdown of the solid into its ions? Atomization entropy. ना 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 ना, एटोमाइजेशन मॉलिक्यूलर कोवेलेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड इनटू इट्स एटम्स के लिए है। आयोनिक सॉलिड का ब्रेकडाउन के लिए तो स्पेशल एनर्जी है क्या? Lattice entropy. हाँ, आयोनिक सॉलिड के लिए लैटिस एंथैल्पी, कोवेलेंट के लिए हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एटोमाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। नाउ व्हेन द आयंस गेट हाइड्रेटेड, द एनर्जी इज hydration energy. This will actually be equal to the hydration energy associated with the cation plus the hydration energy associated with the anion. अलग अलग दिया है तो सम ले लो, साथ में दिया है तो it will be combined only. ठीक है। अब मुझे बताओ, is enthalpy a state function or a path function? State function. स्टेट फंक्शन मतलब चाहे मैं ये एक स्टेप में कंसिडर करूं या मल्टीपल स्टेप्स में कंसिडर करूं, these enthalpies are not going to change. Do you agree? Yes, sir. So can I say that the delta H solution is equal to the delta H lattice and the delta H of the solution, sorry, hydration? आता है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस तरह का ट्राइंगल बनाओ एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। फॉर्मूला तो जस्ट याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा। यू नो दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, तो चाहे एक स्टेप से जाओ या दो स्टेप से जाओ, इट विल हैव द सेम एंथैल्पी। इनफैक्ट आगे चल के इसी चीज को हम हेसेस लॉ में पढ़ेंगे, ये हेसेस लॉ ही है, that enthalpy being a state function, whether a reaction or a process is carried out in एक step, दो step या multiple step, the enthalpy will remain constant. अब कन्वेंशन की बात करते हैं, साइन कन्वेंशन की।
मुझे बताओ लेटाइस एंथैल्पी विल बी प्लस और माइनस, एंडो या एक्सो? Plus. तोड़ने की एनर्जी है, फोड़ने की, किसी को भी फोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो एंडोथर्मिक है। हाइड्रेशन Exo. एक्सो, बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द iron and the water, and bond formation is always exothermic, and that is why ये negative होगा। अब depending on the magnitude of the lattice and the hydration, the enthalpy of solution can either be positive or negative, और यही तो decide करेगा whether a substance is soluble or not। इसीलिए तो हम condition बोलते हैं ना कि hydration और lattice में if hydration is much greater than the lattice, the solute dissolves। solubility का ये रूल था कि नहीं था? Yes, sir. बस तो यही फंडा हमने थर्मोडायनामिकली समझ लिया, बस कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी बताया हुआ था। आर यू वेरी क्लियर विद दिस? Yes, sir. Now coming to Born-Haber cycle. Born-Haber cycle basically gives you the various thermodynamic enthalpies relation for a process of converting the ionic solid into its ions, या वाइस वर्सा कि आयंस का कॉम्बिनेशन से आयोनिक सॉलिड का जो प्रोसेस है उसका पूरा एंथैल्पीज का जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय द बॉर्न-हेबर साइकिल। तो ये बेसिकली मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। अगर मेरे पास सोडियम का सॉलिड है और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर गैस है और इससे मुझे NaCl सॉलिड बनाना है, तो मुझे बताओ what all processes would be required in forming this solid? First convert sodium to gas. Correct. Sublimation दे दो। Then ionization of sodium. Correct. Electron gain of fluorine. Correct. Then bond formation. And then solidification. Perfect. तो यही सारी प्रोसेसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को हम बॉर्न-हेबर साइकिल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हैव अ लुक एट दिस। I have Na solid plus half chlorine gaseous giving you NaCl solid. So when 1 mole of any substance is getting formed from its constituent elements in the standard state, the enthalpy is called delta HF. F माने formation, फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गया। अब ये जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है ये कितनी एंथैल्पी से रिलेटेड है? फर्स्ट इट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी टू कन्वर्ट Na solid into gaseous, then the gaseous sodium converted into gaseous cation, ionization enthalpy। क्लोरीन के हिसाब से देखें तो पहले इसको डिसोसिएशन करना पड़ेगा, तो हाफ मोल का एनर्जी इतना, फिर क्लोरीन गैस से Cl- गैसियस लाना पड़ेगा, इसके लिए आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, एंड नाउ Na+ और Cl- गैसियस को कंबाइन करके NaCl सॉलिड लाना। तो दिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, बिकॉज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, is equal to sum of sublimation, ionization, dissociation and electron affinity plus U. What is this U? कहां से समझेगा? सॉरी, Na+ gaseous और Cl- gaseous से NaCl solid, what is the enthalpy called? Ionization. Ionization. ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। NaCl solid से Na+ gaseous और Cl- gaseous, क्या एंथैल्पी था बच्चा? Lattice. Atom. तो Na+ Cl- gaseous से NaCl solid would be Minus of. minus of the lattice enthalpy,
मतलब ये जो ह्यू है ना, इट इज द रिवर्स ऑफ डेल्टा एच एल, राइट? Yes, sir. इसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है और ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल का एक सोल्यूशन है। आपको ऑल दीज एंथैल्पीज दी जाएगी 1 2 3 4 5 और डेल्टा एच एफ फाइंड करने बोला होगा। अब खाली ये चीज याद रखना कि जो डिसोसिएशन है ना, वो अगर पर मोल दिया है तो फिर यू हैव टू टेक हाफ ओवर हियर ना। अगर ये डिसोसिएशन पर मोल दिया है तो 1 मोल क्लोरीन का दिया होगा ना, आपको कितने के लिए चाहिए? Half. हाफ, तो इसको हाफ करना पड़ेगा, बस वो ध्यान रखना। यहाँ पे डायरेक्टली हाफ का वैल्यू दिया है इसलिए उन्होंने ले लिया है, समझा? Yes, sir. और लेटाइस एंथैल्पी तोड़ने का एनर्जी था तो वो पॉजिटिव था। रिवर्स ऑफ लेटाइस एंथैल्पी देखो क्या है, नेगेटिव। गॉट इट? Yes. पूरा समझ में आया ये एवरीवन? Yes. ओके, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मतलब if I want to change a solution from one concentration to another concentration without adding water in very much excess, then जो intermediates में concentration changes का एंथैल्पी आता है, that is called enthalpy of dilution। मतलब मान लो मेरे पास HCl gaseous है, अगर मैं aqueous लिखता हूं मतलब the water is added in very much, Excess. so this would actually form HCl aqueous मतलब solution। तो ये enthalpy of solution कहलाएगा। आता है समझ में? Yes, sir. पर डाइल्यूशन में क्या कर रहे हैं हम, सम अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हैं, पहले 25 यानी लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसकी एंथैल्पी ये है 40 मोल्स ऑफ H2O या 200 मोल्स ऑफ H2O। मतलब अगर कहीं प्रोसेस में लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डाला है तो आप उसको एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोलोगे, अगर AQ यानी एक्सेस ऑफ वाटर डाला है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलोगे। बस इसमें यही डिफरेंस है, डाइल्यूशन मतलब चेंजिंग फ्रॉम वन कॉन्सेंट्रेशन टू अनदर, एंड सॉल्यूशन में एडिंग द वाटर इन वेरी मच एक्सेस टू फॉर्म द एक्वियस सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? यहाँ पर देखो हमने एक्वियस नहीं लिखा है, HCl ब्रैकेट 25 H2O लिखा है, मतलब ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। गॉट इट? Yes, sir. तो जस्ट इतना ध्यान में रखो, डाइल्यूशन में लिमिटेड वाटर इज एडेड, limited water is added, and solution में excess water is added। बस इतना डिफरेंस है। ओके, Yes. Yes, sir. coming to the next enthalpy, the enthalpy of neutralization। ये भी हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है लेकिन वहां पर इतना डिटेल में नहीं बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। Now what is a neutralization process? Acid plus base giving salt plus water. तो एसिड मतलब लेट्स से HCl प्लस बेस मतलब लेट्स से NaOH, गिविंग यू द सॉल्ट मतलब NaCl एंड वाटर। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी एसोसिएटेड है वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, अब HCl तो हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट विल ब्रेक डाउन कंप्लीटली इनटू H+ एंड Cl-। NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, विल ब्रेक डाउन कंप्लीटली इनटू Na+ and OH-। NaCl is a salt, will break down as Na+ and Cl-, and water is a weak electrolyte, would not break down। If you now cancel off the common terms from left and right, what is a neutralization process actually? It is a process wherein the H+ from the acid combines with the OH- of the base and forms water।
And since there is a bond formation between H plus and OH minus, there is a fixed amount of energy released always. And that fixed amount of energy under standard condition would be called standard enthalpy of neutralization. And that is having a constant value as negative 57.32 kilojoule per gram equivalent. यहाँ हम पर मोल नहीं लिखते हैं, पर ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं. क्यों वो भी बताता हूं. या फिर इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो इट्स -13.7 किलो कैलोरी per gram equivalent. So why the neutralization enthalpy is always fixed? Because it always relates to the bond formation between H plus of acid and OH minus of acid to always give water. तो क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रोसेस या सेम प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफाइन किया जाए तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ आता है. बराबर. Yes, sir. नाउ मुझे बताओ, इफ आई हैव NaOH plus H2SO4, if I have 1 mole of each, can you tell me what is the salt formed? NaHSO4. बाइसल्फेट बनता है, NaHSO4 plus H2O. So how many moles of water are actually formed in this process? 1. 1. तो इसकी एंथैल्पी कितनी होगी? इन किलो कैलोरीज या किलो जूल्स कितना होगा? -57.3. This will be -57.3 kilojoules. डेल्टा H n की वैल्यू बात करो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं. ये गौतम किधर जाने का है? बार बार घड़ी देख रहे हैं. हाँ, 15 times you have turned to the clock. Is it boring? Isn't it interesting? No, sir, it's not that. ठीक है. Okay, अब मुझे बताओ, for this particular process wherein 2 NaOH is neutralizing with H2SO4 giving you Na2SO4 and 2H2O. यहाँ पर what will be the enthalpy? -114.6. Because now 2 OH minus from the base are neutralizing with the 2H plus of the acid and forming 2 moles of water. So obviously यहाँ पर it will be -57.3 into 2. तो ये पर ग्राम इक्विवेलेंट का फंडा क्या है? H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है, तो इसका N फैक्टर जो है वो तो 2 है और NaOH का N फैक्टर 1 है. लेकिन डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मोल्स ऑफ OH माइनस आर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड, वी आर डिफाइनिंग द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सो अगर मोल की बात करूं ना, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 यहां पर मैंने लिया है, लेकिन उसमें दोनों H प्लस यूज नहीं हुए हैं. ओनली एक इक्विवेलेंट H प्लस यूज हुआ है, इसलिए पर ग्राम इक्विवेलेंट लिया जाता है. आया समझ में? Yes, sir. ओके. अब ये तो बात हो गई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, जो कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं. मान लो अगर कोई न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड वीक बेस में हो या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में हो या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हो, तो उस केस में विल द एनर्जी रिलीज बी इक्वल टू -57.3? No. नहीं, बिकॉज जो वीक एसिड है या वीक बेस है, उसको तोड़ने के लिए कुछ तो एनर्जी चलेगा, लगेगा कि नहीं? तो जो 57.3 रिलीज हो रही है ना, उसमें से कुछ एनर्जी उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने में यूज हो जाएगी. मान लो 2.32 एनर्जी तोड़ने में यूज हो गई, तो अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की एनर्जी रिलीज कितनी होगी? -55. बस. मतलब for the neutralization process wherein a weak electrolyte is involved, the enthalpy will always be less than 57.32. when I say less, magnitude की बात कर रहा हूं. Sign is only for the exo और endo. magnitude wise वो 57.3 से कम आएगा. बराबर? Yes, sir.
Here we are. In case of a neutralization of a weak acid by a strong base, यहाँ देखो, the enthalpy of neutralization of a weak acid or a weak base will be equal to minus 57.32, the standard one, plus the enthalpy which is required to ionize the weak acid or weak base. जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2.32 की एनर्जी तोड़ने में यूज हो गई किलो जूल्स, तो अब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड or a weak base with the strong component will be lesser than that, so minus 55 would be the answer. आया relation समझ में? Yes, sir. And chemistry is incomplete without exception. Here we are. But worth exception. समझने लायक. HF plus NaOH giving you NaF plus H2O. ये भी एक weak acid है, neutralizing with a strong base. इसकी enthalpy 57.3 से कम आनी चाहिए कि नहीं? Do you agree? Yes, sir. Look at the value. Look at the value. It is even greater than the expected standard enthalpy of neutralization. 68.5 kilojoule. यहाँ पर मोल लिखूं तो चलेगा क्योंकि दोनों ही मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक है, तभी पर मोल लिखेंगे चलेगा, पर ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो भी चलेगा. बट कोई भी एसिड या बेस अगर डाई बेसिक या डाई एसिडिक है तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट में बात करने का. समझता है? Yes, sir. अच्छा, तो एक्सेप्शन क्या है? Although HF is a weak acid, enthalpy of neutralization is unexpectedly very high, greater than 57.3 kilojoule per mole. और यहाँ पर आता है फंडा, hydration energy of fluoride ion is more than all ions in halogen groups because the energy required to break the FF bond is less and hence hydration का energy is much more. तो इसकी जो हाइड्रेशन की एनर्जी रिलीज होती है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि उसमें से HF को तोड़ने के लिए एनर्जी दे भी दो तो भी वो एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो 57.32 को एक्सीड कर जाती है. नोटवर्दी एक्सेप्शन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन. अलोट्रोपिक फॉर्म्स में जब एक अलोट्रोप दूसरे अलोट्रोप में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एंथैल्पी. मतलब ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हुआ, इसकी एंथैल्पी हो गई एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन. रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन. रेड फास्फोरस टू येलो फास्फोरस, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन. So associated with one mole of allotropic form of a substance into another, that's enthalpy of transition. बस समझा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फाइन, ठीक है. Let's stop here for today. So आज के सेशन में I started with second law of thermodynamics. क्यों उसको लाना पड़ा वो हमने डिस्कस किया via the flaw or the drawback associated with the first law, and then we defined various enthalpies for various processes, whether it is a physical process or chemical process. अब यही सारी enthalpies के related we will be solving the numericals in the next session. थोड़ा और enthalpies का concept बाकी है thermochemistry के अंदर, वो कंप्लीट करके हम आगे कुछ MCQ फॉर्म में न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे. ओके, Yes, sir. फाइन, चलो, थैंक यू, डन. Bye, sir. Bye.